स्वागत है आपका हमारा चैनल निराला एकेडमी में। आज की हमारी क्लास है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 साइंस से, जिसमें मैंने चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बताया हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर शेल एंड हाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर शेल एंड हाउ। चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिए। रॉबर्ट हुक 1665। ही thinly pared a piece of cork and observed it under his self-made primitive microscope. The scientist found that cork possesses a number of small box-like structures which he named shells, cellular, which later appeared to cell. His work was published in the form of a book called Micrographia. यानी सिंपल वर्ड में बोले तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में शेल का खोज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इसका आंसर नोट कीजिए। स्ट्रक्चरल यूनिट, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, therefore cell is a structural unit of life. Functional unit, all life or function of an organism resides in its cells. Cells may also become specialized to perform a specific function like contraction in muscle cell or impulse transmission in nerve cell. Therefore cells are functional unit of life. आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आराम से आंसर लिख दीजिए। काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आंसर लिखा है ताकि आप सभी को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस। ओके, इसका आंसर नोट कीजिए। CO2 मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स बाय डिफ्यूजन while water does it through osmosis. Diffusion, it is movement of particle of various substances from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. Okay, higher concentration to region of their lower concentration. Point 1, in a respiring cell more CO2 is produced internally. As a result, its internal concentration rises as concentration of CO2 is lower in the outside medium. CO2 passes out from cell into external medium. Okay, इसमें दूसरा पॉइंट ये नोट कीजिए, in photosynthesis cell CO2 is being consumed in photosynthesis. Its intracellular concentration is lower than outside medium. Okay, therefore CO2 diffuse from outside to inside of the cell. Therefore CO2 diffuse from outside to inside of the cell. Osmosis, it is a movement of water from the region of its higher concentration, pure water or dilute solution. Okay, इसको ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, pure water or dilute solution, to the region its lower concentration when the two are separated by semi-permeable membrane. Plasma membrane function as semi-permeable membrane. Cells have function as a strong solution. Therefore external water enters the cell and osmosis इसको बोलते हैं, till wall pressure counterbalance its strong solution. Water would pass out from the shell into external medium. The phenomena is called exosmosis. Okay, exosmosis नोट कर लीजिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, why is plasma membrane called selectively permeable membrane? Cell membrane is semi-permeable membrane for water. It permits the entry of gases through diffusion. Ions, sugars, amino acid, etc. pass through the plasma membrane by an active process. Okay, plasma membrane is impermeable to certain other materials, therefore it is selectively permeable.
क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे दो डिफरेंस लिखी गई है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और इसमें कुछ फिल इन द गैप्स है जिसको हमें गैप्स को फिल करना है। ओके, तो चलिए हम इसका सबसे पहले लेफ़्ट साइड में 2 का 1 में भरेंगे। लेफ़्ट साइड की तरफ फर्स्ट नंबर में पुअरली डिफाइंड, क्या भरेंगे, पुअरली डिफाइंड ड्यू टू, इसको भरना है लेफ़्ट साइड में, पुअरली डिफाइंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, सेकेंड में न्यूक्लियाइड, क्या भरना है, न्यूक्लियाइड। और फिर उसके बाद आपको राइट साइड में 4 नंबर में भरने हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलेस आर प्रेजेंट। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सेल जिसको यूकैरियोटिक सेल में भरने हैं, ऑर्गेनलेस आर प्रेजेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए काफ़ी आराम से। लेफ्ट साइड की तरफ यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के साइड में प्रोकैरियोटिक वाला भरिएगा लो। यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड करके लिख दिया है। अगले प्रश्न है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इसको नोट कर लीजिएगा लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर अपना लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी सिंपल वे में बताया है, सिंपल सेंटेंसेस लिखी है ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। ओके, क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। केमिकल इन्फ्लुएंस और फिजिकल इन्फ्लुएंस के बारे में करना है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल डिस्ट्रॉयज के लेकर। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम होता है, क्या होता है, लाइसोसोम, जो आत्महत्या की थैली भी होती है। लाइसोसोम विल ब्रश टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल कॉज ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस सेलुलर कंपोनेंट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स if their covering membrane breaks as it happens during injury to cell. Okay, the digestive enzymes will spill over the cell contents and digest the same. As lysosomes are organless which on bursting can kill the cells possessing them, they are called suicide bags. Okay, समझ आया आप सभी को कि आत्महत्या मतलब लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, नोट कर लीजिए आप सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज इनसाइड द शेल। ओके, आंसर, प्रोटीन्स आर सिंथेसिस ओवर द राइबोसोम। ओके, नोट कर लीजिए, प्रोटीन्स आर सिंथेसिस ओवर द राइबोसोम्स। चलते हैं अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे। ये जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर कराए ये बुक के अंदर दिए हुए थे। अब मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। ओके, सबसे पहला है, मेक ए कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन द विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है कंपेयर करके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। तो सबसे पहला प्लांट सेल में लिखेंगे सेल वाल, इट इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ अब्सेंट। सेल वाल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और इसमें अब्सेंट होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और इसमें एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम जो होता है अब्सेंट एक्सपेक्ट इन सम लोअर फॉर्म, इन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। वैक्यूल्स ए सिंगल सेल vacuoles over in a plant cell, a few vacuoles occur in the animal cells. Nucleus it lies to peripheral rigidity. Plant cells cannot change their shapes. Golgi apertures plant cell contain several subunits of the Golgi apertures from dictosomes. और इसमें comparatively smaller is size. Food, the stored food is generally starch and the stored food is generally okay. Next question है, how is prokaryotic cell?
क्वेश्चन नोट कर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन है हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ओके, हाउ यानी हमें इस दोनों का डिफरेंस लिखना है, प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। इसमें सब में 7 डिफरेंस है, आप इसमें से 3 या 4 भी कर सकते हैं। सबसे पहले साइज, इसमें साइज की डिफरेंस है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेस, राइबोसोम, मिटोसिस और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, शाइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में होंगे जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्टा। ओके, ये यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपीट्स और ब्रेक डाउन्स। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपीट्स और ब्रेक डाउन। There will be a spilling of cytoplasm and cell organelles, bursting of lysosome and digestion of cellular contents. Okay, next question है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apertures? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट कर लीजिए। There would not be any lysosome for intracellular digestion and cleansing, no complexing of molecule, no excretion, no formation of new plasma membrane. नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल because it produces most of the molecules of ATP which are required for providing energy for synthesis of a new chemical, mechanical and other cellular functions. Okay, next question है question number 6, where do the lipids and the proteins constituting the cell membrane get synthesized? Proteins are synthesized over ribosome of RER while lipids are synthesized over SER. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अमीबा obtain फूड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इज फ्लेक्सिबल विथ इट्स हेल्प अमीबा engulfs food particle. The engulfed food particle passes into the body of amoeba as a phagosome. Phagosome combines with the lysosome to produce digestive of food vacuole. Digestion occurs in food vacuole. The digestion food passes into surrounding cytoplasm. Okay, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द अनडाइजेस्टेड मैटर इज थ्रो आउट ऑफ द सेल ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ओके, द डाइजेस्टिंग फूड पासिस इनटू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड द अनडाइजेस्टेड मैटर इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मीन्स प्योर वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन को बोलते हैं, टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नोट कर लीजिए इसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकती है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़रूर, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण क्लासेस की वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फ्लोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट करनी है, ठीक ना। उस एक्सपेरिमेंट को मैंने काफ़ी ही सिंपल वे में बताया है, सिंपल सेंटेंसेस में बताए हैं, तो आप इसे आराम से देखिए, समझिए, बाकी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप सभी को। ठीक है, आप 1-2 बार रिपीट करेंगे, काफ़ी अच्छा से आप सभी समझ सकते हैं। ओके, इसमें क्या करना है, टेक 4 peeled potato halves and hollow and the potato cups, put each of the cup and a keep cup or empty। सबसे पहले आपको जो जो आइटम्स लेने हैं उसको लेना है, उसके बाद ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, आई मीन कप बी, कप सी, कप डी
इन सारे चीज़ों का अवलोकन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आगे हमें क्या चीज़ करनी है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है आंसर, फर्स्ट में जो क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर होगा शुगर एंड सॉल्ट्स इंक्रीज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन विच रिजल्ट इज पासेस ऑफ वाटर ऑस्मोटिकली फ्रॉम थ्रू the shells of potato B and C in this cavity. Number two, potato A functions as control experiment, which indicates the cavity of water does not gated in the hollow of higher osmotic concentration than the cells of potato tuber. आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, ओके। थर्ड है पोटैटो ट्यूबर डज नॉट लिविंग सेल्स ऑस्मोसिस डज नॉट ऑक्योर इन डेड सेल्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब